اس کے بعد سلطان زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس مسجد کو بنایا ہے 650 سال پہلے جی تو اس کے بعد فرسٹ ٹائم اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے مغل دور میں فرسٹ ٹائم رینوویٹ کیا گیا ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹاکس اینڈ ٹنلز. آج ہمارا ہے 17th ایپیسوڈ جو آج ہم شہر خاص بارہ مولہ کے اولڈ ٹاؤن میں کر رہے ہیں. اور آج ہم اس مسجد میں آئے ہیں جو مرکزی جامع مسجد ہے یہاں اولڈ ٹاؤن کی. ہوپ فلی یو ول لو دا مسجد کیونکہ باہر سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اور اٹ ہیز اے مغل ہسٹری ایز پر وی ہیو ہرڈ. لیٹس سی ہاؤ اٹ از. اور یہاں کے لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہسٹری ہے اور کب مسجد تعمیر ہوئی ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا آج ہمارا 17 ڈے ہے. آج ہم مرکزی جامع مسجد اولڈ ٹاؤن میں آئے ہوئے تھے جدید محلہ. تو ایک ریزیڈنٹ مل گئے جو ہم کو بہتر بتا پائیں گے اس ہسٹری کے بارے میں اس مسجد کی جو ہے. تو ان سے جاننے کی کوشش کریں. آپ مجھے بتائیں یہ جو پہلی مسجد ہے آپ کے حساب سے جو آپ نے سنا ہوگا, میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ایسٹیمیٹڈ آپ کو پتہ ہی ہوگا کب کی بنی ہوئی ہے. تو آپ نے جو سنی ہے کہانیاں وہ کہاں جاتی ہے, وہ روٹس کہاں تک جاتے ہیں؟ میں جو اس کی ہسٹری ہے جو میں آپ ڈفرینٹ بک سے بھی پڑھ سکتے ہیں یا گوگل سے بھی آپ کو مل سکتا ہے اس کی ہسٹری. ایکچولی اٹ از سیڈ ٹو بی بلڈ آلموسٹ 650 ایئرس ایگو اینڈ 650 سال پہلے اس کو بنایا گیا ہے سلطان زین العابدین نے. سلطان زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کو 650 سال پرانی مسجد ہے. فاؤنڈیشن اسٹون انہوں نے ہی ڈالی ہے. ایکچوئل میں ایک مسجد سری نگر میں ہے اور اسی بیس پہ یہ مسجد بارہمولہ میں بنائی گئی ہے. ان دنوں یہ ایک ہی مسجد تھی لوکیٹڈ سینٹرلی لوکیٹڈ مسجد جس کا مین پرپز تھا یہاں پہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے یا عید کی نماز پڑھتے تھے. جو مین اوکیزنس پہ یہاں پہ لوگ گیدر ہوتے تھے اور یہاں پہ نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد سلطان زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس مسجد کو بنایا ہے 650 سال پہلے تو اس کے بعد فرسٹ ٹائم اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے مغل دور میں. فرسٹ ٹائم رینوویٹ کیا گیا ہے مغل دور میں اورنگزیب نے. فرسٹ ٹائم اس کو رینوویٹ کیا گیا. انہوں نے کیا تھا اورنگزیب نے اس کو مغل دور میں اورنگزیب نے اس کو رینوویٹ کیا ہے فرسٹ ٹائم. ہاں اس کے بعد فرسٹ رینوویشن بننے کے بعد جو فرسٹ رینوویشن کی ہے وہ مغل دور میں ہوئی ہے, اورنگزیب نے کی ہے. بالکل رینوویشن بلڈ تو بنائی تو سلطان زین العابدین نے, تو اس کے بعد فرسٹ ٹائم رینوویشن اس کی ہوئی تھی اورنگزیب سے. تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ 19th سینچری میں ایک زبردست زلزلہ آیا ہے تو اس میں یہ بیڈلی ڈیمیج ہوئی ہے یہ مسجد. ہاں اس کے بعد جب یہ ڈیمیج ہوئی ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک سٹیزن رہتے تھے اسی محلے کے, ان کا نام تھا عبدالصمد کاکرو. انہوں نے پھر دوسری مرتبہ جب یہ ڈیمیج ہوئی تھی زلزلے کی وجہ سے تو انہوں نے اس کو
रेनोवेट किया तब किया उसके बाद ये 19th सेंचुरी की बात है कि जब उन्होंने उसको रेनोवेट किया। तो उसके बाद इसकी रेनोवेशन बिल्कुल नहीं हुई बहुत टाइम तक, लगभग 100 साल तक इसकी तब रेनोवेशन तक फिर वो उसी उन्हीं हालातों में थे जो उन्होंने किया था। जैसे थे तो उसी हालत में ये रही। उसके बाद क्या किया गया कि इसका छत डैमेज हुआ था जी। रिसेंटली, ऑलमोस्ट ये 2023 में। 2023 तो में। इसको हमने ये छत इसका चेंज किया। इसमें जो इससे पहले छत थी उसमें टीन वगैरह था। बिल्कुल 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 इसमें लगा के टीन लगा के था, मगर उसके बाद जब ये उसमें पानी टपकने लगा तो हमने उसको चेंज किया। बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर था उसको हमने वैसे ही रखा। इसका जो स्ट्रक्चर था जिस तरह से दिया गया था उसको हमने वैसे ही रखा। तो खाली हमने उसके बाद शीट्स रखी इस पर। अच्छा। और थोड़ा सा हमने बाहर, अगर आप देखोगे हमने बाहर निकाला 8-10 फुट, इसलिए कि ताकि ये जो पानी टपकता था नीचे ऊपर से तो थोड़ा दूर की तरफ जाए। हाँ बाकी चीज़ वो ठीक रहे। और हमने बाहर थोड़ा बहुत ये बनाया रैक्स वगैरह शूज़ के लिए बस। और तो पैनलिंग हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे थोड़े बहुत हमें क्रैक्स लग रहे थे तो हमने इसको पैनलिंग की है। अच्छा, उससे पहले क्या है जो स्ट्रक्चर है उसका वो पत्थरों का है? नहीं, हाँ ये एक्चुअल में पत्थरों का बना था। उसके बाद इसमें वो मिट्टी लगी लपाई हुई हाँ हुई। मिट्टी की लपाई हुई थी। उसके बाद बेसिकली ये बना है उसी का। और एक्चुअल में ये इसका ये जो स्ट्रक्चर है मजबूत इसलिए है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें उन दिनों में उन्होंने मिक्स की है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने जिसको कहते हैं हम ये, मैंने एक बुक में पढ़ा था इसके में, हमने इसमें ये अंडे भी डाले थे जो मिक्सचर में वो मिट्टी थी। और इसी तरह घास भी थो, घास को काट के आज भी अंडे मिक्सचर कंक्रीट के साथ करते लोग। हैं। उस टाइम उन्होंने भी किया है। और इसी तरह मिट्टी मिलाई है, अंडे मिलाए हैं, इसी तरह से घास के छोटे छोटे टुकड़े इसके साथ मिलाए हैं। तो उसी को उसका जो मिक्सचर है वो स्ट्रांग बन जाता है। तो उसी के साथ कंक्रीट की तरह बन जाता है। तो ये मैं आपसे अभी ये कह रहा था कि 2023 में हमने जो इसको छत इसकी ख़राब हुई थी तो हमने इसको रेनोवेट इसकी छत भी की। और हमने इसकी जो पैनलिंग वैनलिंग की थी, जो लाइटिंग का सिस्टम है वो भी इसमें हमने यहाँ किया। बाकी ये जो आप 4 पिलर्स देख रहे हैं ये वैसे ही है, ये इसी के साथ हमने जैसे ये पहले थे लकड़ी के 4 ये 5 ये और जो लकड़ी का इसमें जो डिज़ाइन है नक्काशी, हाँ ये सारा वैसा ही है। ख़त्म क्या कहते हैं उसको, वहाँ पे जो डिज़ाइन वहाँ की वो सेम वही है जो मेंबर के पास है। मेंबर और मेहराब सेम, हाँ इसी तरह से ये है। क्या कहते हैं उसको, ये सेम वही। हमने इसके साथ कभी खाली हमने एक बार इसको ये किया है कि इसमें हमने थोड़ा लेमिनेट किया है ताकि ये प्रिजर्व रहे। अच्छा, इसके ऊपर आपने हाँ इसके बाद थोड़ा बहुत हमने इसको लेमिनेट, वरना जो ये है ये सेम वैसा ही है जैसे ये जो आप बोल रहे हो। हाँ, ये जो इसका है ये सेम वैसा ही है। ये जो बना था उन दिनों उसी तरह से हमने इसको भी ऐसे ही रखा। तो और ये जो इसके बाकी पिलर्स है ये लकड़ी के बने हैं, ये पिलर्स सारे जो भी है। और ये बाकी जो इसका छत है वो भी सेम जैसे था वैसे ही है। बिल्कुल बस same, आपने थोड़ा सा टचेस दिया है पेंट किया है हमने इस पर। बाकी वैसा का वैसा ही है ये। सिर्फ इसमें हमने ये किया है, पैनलिंग की थी थोड़ा बहुत हमने इसमें ये सारी चीज़ें हमने। बाकी जो इसका ये फ्रंट है ये हमने वैसे ही रखा, लेमिनेट इसलिए किया कि ताकि ये प्रिजर्व रहे। जी तो मतलब इट हैज़ अ रिच हिस्ट्री। जी यस। और ये आप बोल रहे हो कि मतलब आपने जो ऊपर जो है सारा सेम सर आपने थोड़े से टचेस में दिए। हाँ बस थोड़ा टच हमने इसमें पेंट किया है हमने, यही सारा हमने इसमें। और ये पैनलिंग की है बस। हाँ और ये जो इसमें आप अगर फ्रंट में देखोगे ये इसका ये जो दरवाज़ा है इसमें भी, हाँ ये वाला इसमें भी सेम वो जो उन्होंने काम किया है तो वो भी सेम उसी तरह से है। वो भी ये दरवाजे जो भी लगे हैं ये नए हैं, ये नए दरवाजे नए लगे हैं। जो फ्रंट डोर है इसमें वो सारा काम किया है साइड्स में, वो सारा काम उसमें किया। बाकी क्योंकि दरवाजे जो थे इसके वो अब खराब हो गए थे बारिश की इसलिए, हाँ इसलिए हमने इनको चेंज किया। अभी जो इनको दरवाजे को चेंज करने में कितना टाइम हो गया? 2-3 साल? नहीं, दरवाजे को हो गए ऑलमोस्ट 20-25 साल। हाँ 20-25 साल हो गए हैं दरवाजों को चेंज किए हुए। जी पैनलिंग को हो गए 2-3 साल। हाँ ये छोटा मोटा जो आपने हाँ पैनलिंग को हो गए 2-3 साल। और बाकी क्या कहते हैं उसको, बाकी जो आप मुझे बोलें जो ये अभी जिसके ऊपर पैनलिंग चढ़ी हुई, इससे पहले जो दीवार थी वो कैसी दिखती थी? बिल्कुल वही मिट्टी वाली दीवार। हाँ मिट्टी वाली दीवार। ऐसा आप बोल रहे हो जो मिक्सर मैं था। आपको उसके फोटोग्राफ्स भी दिखा सकता हूँ। तो
आप मुझे कैसे फोटोग्राफ दिखेगी। दिखाना जी, जी, ताकि मैं वो डाल सकूं साथ आप में। डाल सकते हो, मैं वो फोटोग्राफ आपको दिखा सकता हूँ कि कैसी लग रही थी ये इससे पहले। हाँ बिल्कुल, ये हर एक साइड बराबर है, 65 फीट है ये एक साइड। ऐसे 65 हाँ, और ऐसे भी लेंथ में भी। लेंथ में भी और ब्रेड्थ में भी 65। ये स्ट्रक्चर ऐसे तो आज बहुत मुश्किल से दिखते हैं जी ऐसे। जी जी बिल्कुल, श्रीनगर में जैसे जामिया मस्जिद है उसी बेस पे यहाँ पे भी बनाई जैसे गई वहाँ है। पे थी उन्होंने उस टाइम पे बारामूला और श्रीनगर ही मेन हब थे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बारामूला तो उस टाइम पे बारामूला ट्रेड बिल्कुल, का हब था, बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ ट्रेड यहीं से जी होती जी थी। जी जी। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने सोचा होगा कि जब श्रीनगर में बन गई है सिटी में तो हाँ, यहाँ पे उसी भी बेस ज़रूरी पे यहाँ बनाना पे, है। और एक बेस पे शुपियन में भी बनाई गई है जामिया मस्जिद। अच्छा, ये अच्छा, तीनों, हाँ शुपियन की जामिया शुपियान भी मस्जिद है। उन्होंने भी बनाया हाँ, था वहाँ पे भी। वो भी जामिया मुगल दौर से मस्जिद जो आगे बड़ी जुड़ती है। जी जी, शुपियन की भी जामिया तो मस्जिद। 3 मस्जिद थी जी कश्मीर जी, में। ये मरकजी जामिया मस्जिद बारामूला, श्रीनगर और शुपियन। जी जी। इसमें अगर कोई इंसान फंडिंग करना चाहे, कोई इंसान डोनेट करना चाहे, वो वो इजली आप मस्जिद के अकाउंट से यहाँ आ सकता है। जी, हमारा अपना पेज चल रहा है मरकजी जामिया मस्जिद बारामूला, उस पर भी सारी डिटेल्स है, उस पर इसके फोटोग्राफ्स है, बाकी सारी चीज़ें। मरकजी जामिया मस्जिद, उसके मस्जिद का अकाउंट नंबर भी है। अकाउंट नंबर उसी पे उसी पे है। इंस्टाग्राम पे भी वो पेज होगा। इंस्टाग्राम पे नहीं है, फेसबुक पे है, मरकजी जामिया मस्जिद बारामूला। आपके पास होगा ना जी, अकाउंट जी, नंबर, आए जी, किसी जी, को तो जी, आपको एंड पे दे दीजिए, क्योंकि हम स्क्रीन पे डाल देंगे। जी, अगर जी। QR कोड भी होगा ज़्यादा बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल, वो एक्चुअल में इसके ये जो सोर्सेज है बहुत लिमिटेड है। खाली हम यहाँ पे जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हैं, हाँ। उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये आता है हमें, मतलब एक महीने को 8-10 हज़ार एवरेजन, 8 वो आप 9, चंदे 10 की हज़ार, बात कर रहे हैं चंदे वैसे। की बात। बाकी इसमें कोई मतलब ये सोर्स नहीं है। अच्छा, इसमें मतलब खाली जैसे लोग Fixed जो जुड़े नहीं हैं है। इस मोहल्ले से, वो मोहल्ले की हमें अलग मस्जिद है छोटी, जो जिसमें हमने नमाज पढ़ी है। इसमें वो हमें मोहल्ले की मस्जिद है। ये मरकजी जामा मस्जिद है पूरे बारामूला टाउन की। जी जी। ये जो कि हमें अपनी मस्जिद है उसको लोग अपने मोहल्ले के दे रहे हैं पैसे, हाँ। हम इसको भी कर रहे हैं। हमने भी ये सारा खुद ही किया है, जी जी जी। लोगों ने दिया है तब जाके हमने इस पे खर्च मगर किया। है ज़रूरत, आपको हाँ, लगता है कुछ बिल्कुल ज़रूरत? ज़रूरत, क्योंकि हमें इसमें दुकान 2-3 है, उनमें किराया है 4,000 पूरे साल को। जी जी। 4-5 दुकानें हैं इसमें, उससे क्या ही गुजारा उससे होता कुछ, और बस जुम्मा का और फंड। आपके खुद के भी कुछ प्लान्स होंगे ना कि इसमें- सच उसको रिनोवेशन करने के? जी जी, इसमें थोड़ा बहुत हमें जो मैक्सिमम रिनोवेशन इसकी थी हमने ऑलमोस्ट इसमें कर ली है। जी। मगर बाहर रैक्स नहीं बने थे, हाँ। या ऊपर छत से पानी टपक रहा था, या शूज़ नहीं हम रख पा रहे थे, तो उसके लिए हमने सारा कुछ बनाया। इसमें पैनलिंग करनी थी, इसमें पेंट करना था, इसमें ये फिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करनी थी, ये सारा हमने किया। अब हमें थोड़ा बहुत इसको, हम इरादा है इसका ख़त्म बंद, ये जो इसका सीलिंग है ऊपर ख़त्म बंद, मतलब वही सेम उस तरह जैसे जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, कश्मीरी उसी कल्चर पे के हाँ हिसाब 8-10 लाख रुपया हमें लग रहे हैं इसमें खर्चा। इसी तरह इसमें भी खर्चा आता है। हमने सोचा था कि इसमें हम थोड़ा श्रीनगर से लाएंगे एक्सपर्ट्स, वो इसमें फिर से थोड़ा बहुत ये करेंगे, Touches ये देंगे रंग, ये जो हाँ, जो इसमें रंग पेंट, ये रंग जैसा है वो इसमें फिर से भर देंगे। क्योंकि ब्लू कलर भी थोड़ा फेड होने हाँ हाँ, ये बिल्कुल ये फेड हुआ है, तो इसलिए हमने सोचा था कि हम उनको लाएंगे तो वो इसमें ये करेंगे। इसी तरह से छत का है, या अभी हम सर्दियों में यहाँ नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, वजह उसकी है कि यहाँ पे हमाम नहीं है, सर्दी होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो AC का- हाँ बुजुर्ग भी बोल हाँ रहे हाँ, थे। AC का हम सोच रहे थे यहाँ हमें 4-5 AC यहाँ काम 4 तो करेंगे। एटलीस्ट कम से कम 4 तो लगेंगे ही यहाँ जी पे। जी। इसी तरह इसकी हाइट भी ठीक है, इसकी 20 फुट हाइट है इसकी, 20 फुट height 20 फुट हाइट है Ceiling इसमें, की height। हाँ 20 फुट। तो अब ये जो आपने कंसर्न्स बोली, यही है बेसिकली इस टाइम पे ज़रूरत है मस्जिद जी, को। जी, एक तो जी। 4 ACs की, जी जी, और इसी थोड़ा तरह बहुत से काम हमें ये सीलिंग का, और ये भी हमें मेन चीज़ें तो इनको हाँ, प्रिजर्व करनी बिल्कुल है। बिल्कुल। और हमें जो छत है इसमें हमें इरादा है कि ये करने का, ख़त्म बंद करने का, इसमें 8-10 लाख रुपया खर्चा आता है, तो वो भी हमें इरादा खत्म है। मतलब वही जो कश्मीरी जी heritage जी वाला जी जी, culture जो है करें, बिल्कुल वही, क्योंकि ये थोड़ा बहुत अब हाँ, ये और मुझे लग रहा है कुछ ये नीचे से नीचे आ आ रहा है ना। हाँ, इसलिए इसको थोड़ा बहुत उस पर पैसा खर्च है। हाँ, शेप से लग रहा है कि थोड़ा सा बीच में से नीचे की तरफ जी जी आने लग रहा है। हाँ। अब ये भी कितना होल्ड कर 600 सकता साल है? 650 साल पुरानी ये मस्जिद लकड़ी है। भी अपना वो दे रही होगी, बिल्कुल। दम तोड़ रही होगी। चलो, बड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है, आप अगर डोनेट करना चाहें, आप डोनेट ऑनलाइन के अकाउंट में भी कर सकते हैं, जो हम आपको स्क्रीन पे दे देंगे QR कोड के साथ। और आप यहाँ आके, अगर आप किसी को डाउट होता है अकाउंट नंबर्स पे, कोई इंसान ऐसा, तो वो यहाँ आके खुद जो मस्जिद की कमेटी है उनको हैंड ओवर कर सकता है, जितना भी अमाउंट हो। अगर उसका 1000 प्रॉपर रिसेप्ट वो ले सकता है। हाँ, प्रॉपर रिसीट उसको मिलेगी। उसके बाद उससे आपको भी इत्मीनान रहेगा दिल को। ऐसे भी कोई ऐसा है नहीं कि आप, आजकल का ज़माना तो इतना डिजिटल है, आप मेरे बेहतर रहता है कि इंसान डिजिटली ही पेमेंट करे, ऑनलाइन ही पेमेंट करे, लेकिन ज़रूरी है करना। ये कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो हमको बचानी ज़रूरी है, हमको खुद, क्योंकि ये
टाउन की शान है इस टाइम पे, आप बोलो तो। इतनी 600 साल पुरानी मस्जिद के रूट्स 600 650 साल पीछे जाते, अगर हम इसको प्रिजर्व अभी नहीं कर पाए, अगर हमारे सामने ही ये गिरना शुरू हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि वी हैव डन समथिंग ग्रेट फॉर आवर टाउन। तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली टेक अ स्टेप अहेड और इसको थोड़ा रेनोवेशन की मदद हमको करनी चाहिए। हर घर से एक इंसान को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, हर एक फैमिली से करना चाहिए। इट्स नॉट द होल थिंग इज़ नॉट अबाउट बारामूला के लोग जो है वो करें मदद। आप कहीं से भी हो कश्मीर में, आप इस हेरिटेज साइट को जो मुग़ल दौर से जाके जुड़ती है, उसको आप बचाने के लिए छोटा सा एक अहद उठा सकते हैं। वो 10 रुपये ही क्यों ना हो, 20 रुपये ही क्यों ना हो, थोड़ा सा डोनेट करें। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग डोनेट करेंगे। अगर आप डोनेट नहीं कर सकते, रिकमेंड यू कि आप प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और शायद उनमें से कोई हो जो मदद कर सके, और उसका भी शायद आपको अल्लाह अजर देगा। अब हम आपसे मिलेंगे 18th एपिसोड में, जो होगा एक नई प्यारी सी मस्जिद के साथ। वहाँ आपको मिलेंगे, वहाँ देखेंगे लोग कैसे हैं, कैसे हालात हैं। तो इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।